Hey guys, it's Pooja Bera and welcome back to my channel. By the title itself, you guys know कि आगे की वीडियो में क्या होने वाला है. So लाइफ में lately बहुत कुछ चल रहा था, so I thought why not make a Q&A video and sit down in my PJs and आंसर ऑल योर क्वेश्चंस कंफर्टेबली. आई नो आप लोग भी पीजेस में ही मेरा ये वीडियो देख रहे हो. सो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है. सो ग्रैब एनी सॉर्ट ऑफ स्नैक यू हैव एट योर होम एंड मज़े से इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखो. एंड विदाउट फर्दर मोर डिले लेट्स क्विकली जंप राइट इनटू द वीडियो. पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि मॉर्निंग को उठते ही फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू इज़ फिल्म दिस वीडियो. सो हियर आई एम. सो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी ये स्टोरी पोस्ट की थी वेर इन आई हैव आस्क्ड यू गाइज टू ड्रॉप इन योर क्वेश्चंस एंड आई हैव रिसीव quite a few questions. And also don't mind my puffy eyes because मैं अभी उठी हूँ and I've just applied a lipstick and I am here to spill all the tea. So जो लोग मुझे Instagram पे follow करते होंगे they would probably know that I left my job. So बहुत सारे लोगों के similar questions आए थे. So let's begin with the first question. Adi, why you left your job and where are you living currently, like in US or in India? Love you always. Love back. By the way, मैं कभी US में थी ही नहीं. Maybe आप लोगों को थोड़ा confuse हुआ रहेगा. I was in UK last year, but मेरा assignment ख़त्म हो गया and I'm back to India. And yes, I left my job. जिनको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, so I used to work as a senior software engineer in a IT company, and I recently left my job like yesterday. And what are my feelings? I do feel nothing. I do really feel nothing about it. Now, why did I left the job? I think for me, quitting a job was a big thing, and there are like several things maybe that triggered me to take this step. So the organization which I was working with, it was like a very good organization. Lately life में कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके वजह से मैंने बहुत चेंजिंग बिहेवियर देखा लोगों में. आई डोंट नो इफ़ यू गाइस नो दिस और नॉट, बट फेब के स्टार्ट में ही माई डैड पास्ड आउट एंड आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी 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 टफ टाइम. I expected people to reciprocate in a certain way. I wanted them to treat me humanly. I was under a wrong impression. I think life में और क्या ही बुरा बुरा हो सकता है मेरे. मतलब I lost my mom few years back. I lost my dad. So life में बहुत बुरी बुरी चीज़ already हो रही थी. The only thing which I was expecting from the people around me is show humanity. But that didn't happen. I literally reached to a point where I was ill. I was literally admitted to the hospital, but लोगों के रिएक्शन बिल्कुल अलग थे. There were a lot of things which was triggering me a lot. Working for long hours, not able to balance my actual life and work life. That made me realize, पूजा यार नहीं अच्छा लग रहा है. Stop it. Don't do it. Don't do it just for the sake of it. एंड इनिशियली मुझे थोड़ा डर भी लगा कि यार आईटी इंडस्ट्री में दूसरा जॉब मिल पाना, इट वुड बी सो टफ एट द मोमेंट बिकॉज रिसेशन हैव हिट वेरी हार्ड. बट देन आई थॉट दिस इज़ काइंड ऑफ अ डू और डाई सिचुएशन बिकॉज मैं इतना घुट घुट के नहीं जी सकती. दिस इज़ हाउ आई एम इन रियल लाइफ. मतलब मेरे को कहीं पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगने लगता है तो आई सिंपली walk out from that situation. This is going to be my suggestion to everyone also. मतलब काम वाम करना ठीक है बट वर्किंग लाइक अगर कोई आपको ऐसा बोलता है कि सैटरडे संडे भी आपको काम करना है, नाउ दैट्स टोटली अपॉन यू if you want to work or not. I do have a life which I live usually on my weekends, like Saturday, Sunday. I dedicate my entire day for doing YouTube और Instagram. But then I saw कि बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस होते जा रहा था. All of my colleagues were working on Saturday and Sunday. I was feeling like very much guilty कि भाई सब काम कर रहे हैं. I am the only one who is denying कि भाई मैं Saturday Sunday नहीं काम कर सकती. But I think you should draw a line
then and there if you don't feel like, and that's completely okay. But of course you are going to be the villain in that particular situation, but that's okay. It took me a time to accept this fact that I'm not going to be a hero in everybody's opinion. It's okay to be a villain sometime. And there are like bittersweet memories of mine which made me feel like bro अब नहीं और होता. I think this is the time I should focus on understanding what I want to do in real life. Okay, let's cut this short. So अच्छी भी memories थी. You guys know I got a opportunity to work in UK and I got to learn so many things like मतलब I was a front end developer earlier, but right now I'm a full stack developer. So I am ट्रूली ग्रेटफुल कि बुरी चीज़ों के साथ अच्छी चीज़ भी हुई. मेजॉरिटी ऑफ द अच्छी चीज़ मेरे साथ हुई, बट बुरी चीज़ें मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई. दैट्स व्हेन आई थॉट ओके इट्स टाइम टू क्विट दिस जॉब. एंड या आई एम completely okay at the moment. Initially बहुत ज़्यादा टेंशन आया था, but now I'm good. बहुत सारे questions आए. What are your future plans? Just curious, what next? First of all, congratulations because I know you're quitting your job. Sometimes something big is already lined up. I truly रिस्पेक्ट यू गाइज फॉर दिस. मतलब आप लोगों को ऐसा लगता है अगर मैंने कोई डिसीजन लिया होगा तो उसके आगे कुछ बड़ी ही चीज़ मेरे पास आई होगी, which is why I would have left the job. That's so sweet of you guys कि you are under this perception. But yes, I got many questions on that. So the next plan is ज़्यादा मैं और ड्रामा नहीं करना चाहूँगी. यू गाइज नो मेरे को एक लाइफस्टाइल जीने की आदत पड़ गई है. All because of this fact that I do earn good working in a IT company. So I have decided to switch to another company. And at the moment I have quite a few offers, but I'm confused which company to pick. But कल तक maybe आपको पता चल जाएगा because I would have to join some or the other organization tomorrow. सो आई एम इन अ सेफ स्पेस एट द मोमेंट बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी क्या होगा अगर जॉब नहीं मिला तो क्या हालत होगी. Second most important thing, YouTube को this year I'm gonna take it very seriously, and I think I do have that creative potential. So maybe I'm gonna create a lot of creative stuff for you guys. Maybe नहीं, आई एम वेरी मच श्योर कि इसके आगे जो भी वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे सारे क्रिएटिव होंगे. एंड आई रियली वांट टू फोकस ऑन फैशन डिज़ाइनिंग वाला थिंग एट द मोमेंट बिकॉज मेरे को लगता है मैं कर सकती हूँ. इट्स गोना टेक टाइम, बट मेरे ऑलरेडी प्लान्स बन चुके हैं दैट आई एम गोना जॉइन अ टेलरिंग क्लास बिकॉज मुझे स्टिचिंग थोड़ा सीखना ज़रूरी है. बिकॉज इनिशियल लेवल का अगर स्टिचिंग मैं सीख जाऊँगी तो आई नो कि समहाउ आई विल फिगर इट आउट एंड उसे बहुत अच्छे लेवल तक मैं पहुँचा दूँगी. देयर आर लॉट ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ जस्ट रनिंग इन माई माइंड, बट आई होप कि मैं दोनों चीज़ें अच्छे से बैलेंस कर पाऊँ. दिस इज़ माई मोटो. सैटरडे संडे में पूरा अपना दिल लगा के यूट्यूब इंस्टाग्राम पे ही मैं बिताने वाली हूँ. and you guys are gonna see a lot of outfit from scratch videos. and जो creative spark मेरा missing था बहुत महीनों से, that you're gonna see coming back on the channel. so a heads up for you guys कि आपको बहुत अच्छे अच्छे content आगे देखने को मिलेंगे. और भी questions आए हैं. let's move on to the next question. okay, sorry to ask personal question, but you are married, but why do you still live separate from your in-laws? I think मैंने इस question का आंसर पहले भी किया था, but I don't mind reiterating. so जब मैं अतुल से शादी करने वाली थी उसके पहले हमारा डिसाइड हो गया था कि we are gonna live separate from his parents. the only reason being is कि यार एक पॉइंट के बाद ना बहुत झगड़े होने लगते हैं. सो इट्स बेटर कि आप पहले ही स्प्लिट हो जाओ. आई थिंक दिस वॉज अ वाइज डिसीजन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड यू गेट अ न्यू जॉब और आर यू फुल टाइम क्रिएटर नाउ? येस, आई डिड गॉट अ जॉब, न्यू जॉब, एंड नॉट गोइंग टू बी अ फुल टाइम क्रिएटर, बट आई एम जस्ट होपिंग कि ये ईयर कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए
कि आई एम डूइंग लाइक रियली 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 गुड यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे, एंड मे बी आई वुड बी इन अ प्लेस वेयर आई मेक अ डिसीजन कि यार ठीक है अब आईटी जॉब छोड़ना है. आई जस्ट विश, आई एम जस्ट मैनिफेस्टिंग कि ये दिन को मैं जीऊँ. हाउ आर यू, दैट्स द रियल क्वेश्चन. ओ माई गॉड, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. आई थिंक लाइफ में इतने सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं मुझे, सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स. टू बी फ्रैंक 2025 जो मैंने सोचा था कि बहुत अच्छा जाएगा, बट जैन से ही अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग इन माई लाइफ. करियर बोलो, लूजिंग माई फादर, और भी बहुत प्रॉब्लम्स थे एक्चुअल लाइफ में. सो आई हैव बिन सीइंग अ लॉट एंड आई हैव बिन लर्निंग अ लॉट. बहुत रियल चेहरे आ रहे हैं लोगों के, एंड या दैट्स हाउ लाइफ इज़. मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में जो पट्टी पढ़नी थी ना मैंने, वो सारे 2025 में ही सब कुछ पट्टी पढ़ा दी मेरे को. एंड आई थिंक आई एम थ्राइविंग मच स्ट्रोंगर नाउ, एंड आई होप, यार भगवान और टेस्ट मत करो मेरा पेशेंस. आई थिंक अभी थोड़ा अच्छा स्टार्ट हम कर सकते हैं. अभी आई विश कि नया जॉब ज्वाइन करने के बाद स्लोली एंड स्टेडीली सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए. तो या अभी के लिए तो आई एम डूइंग गुड. एनी प्लान टू विजिट गोवा? अभी तक तो कोई प्लान बना नहीं है, बट श्योरली this year or next year I will be visiting Goa, and of course I am gonna save one day to meet you. Next is, how is life after getting married? I think मैरिज वाली लाइफ तो एक्चुअली अभी स्टार्ट हुई है मेरी, बिकॉज यू गाइज नो लास्ट ईयर शादी होते ही तुरंत आई वेंट टू यूके, एंड आई हैव बिन इन यूके फॉर आई थिंक ऑलमोस्ट अ ईयर, एंड देन उसके बाद आई केम बैक टू इंडिया दिसंबर में. सो इट्स बिन 5 or 6 months हियर इन इंडिया, एंड तभी एक्चुअल मेरा मैरिड लाइफ स्टार्ट हुआ. ऑफ कोर्स मैरिड लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि भाई सब कुछ अच्छा अच्छा चलता है, ऐसा नहीं है भाई. बहुत झगड़े होते हैं. एंड या स्टार्ट वाला फेज़ तो बहुत बेकार रहा मेरा. इट वॉज ऑन द एकदम स्टीप डाउन फेज में ही था, बट नाउ आई थिंक थिंग्स आर प्रिटी स्टेबल एट द मोमेंट, ऐसा मुझे तो लग रहा है. एंड आई होप कि सब कुछ अच्छा ही हो. एंड ऑल्सो आई हैव सीन पीपल आस्किंग मी दिस क्वेश्चंस अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द लाइव कि भाई वाई डोंट यू पोस्ट एनी फोटो और वीडियो विद जीजू. सो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है मेरे पास. आई हैव बीन नोटिसिंग कि जब भी मैं ऐसा कुछ पोस्ट करती हूँ विथ हिम, नज़र लग जाती है एंड बहुत झगड़े होते हैं, एंड यू नो लिटरली बात एकदम हाथ से बाहर चली जाती है. सो आई थॉट इट्स बेटर टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग of my life private, and that's why I'm not gonna post any pictures with him, may it be any sort of celebration, anniversary, anything. I'm not gonna post it because I truly believe in नज़र. मैं कितने भी लोगों को नज़र लगाने की कोशिश करूँ भाई, उनको कभी नहीं नज़र लगेगी, बट भाई पता नहीं क्या मनुष्यत है, जब भी कोई नज़र मेरे को लगाने की कोशिश करते हैं मेरे पे लग जाती है. सो आई थिंक it's going to be a wise decision to not post anything. Next question is, one hobby that you're enjoying a lot. I think I'm enjoying uh, this process of bringing back the creative puja back. Hobby की तौर पे I think doing all those of creative handwork and all of that. This is one of my favorite hobby, and I'm doing it these days. So मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. Are you living with your in-laws? No. करियर अपडेट दे चुकी हूँ मैं ऑलरेडी. आर यू शिफ्टिंग टू न्यू होम? नो ब्रो, इतने पैसे किसके पास है कि भाई एक घर लिया उसके बाद तुरंत दूसरा घर ले. बट ऑफ कोर्स आई डू हैव दिस सेम प्लान. ऑफ कोर्स हम एक नया घर लेंगे पक्का पक्का. आई एम जस्ट होपिंग कि वाशी में कोई एक नया घर में ले पाऊँ. This has been on my dream bucket list since a long time, and I hope down the lane, and I wish मैं इसे टिक कर पाऊँ. नज़र ना लगे, my baby keep growing, keep shining babes. Thank you so much Golu. Best of luck for your new job opportunity. Thank you so much. Next question is your life post marriage. I think जैसे मैंने कहा है ups and downs
रहा है. Start was very bad, but अभी it's stabilized. So yeah, it's been not a long time. मैंने Q&A related post किया था, so I did not get much questions. So आज के लिए बस इतना ही. I think you guys have got a good life update. And yeah, इस वीडियो में मैंने emotional talking नहीं की, and you know I have not touched that part of losing my father because I don't want it to get too much emotional. And already life में बहुत चीज़ें बेकार हो ही रही है, so I don't want to get you know too much stuck in that loop. So that's why. But yeah, that was it about the life update. I hope that this video have answered most of your questions. So yeah, this will go live today itself, and hoping कि इसके आगे life बहुत अच्छी जाए. Please pray for me, and yeah, I'll see you guys super soon. Till then, take care. Bye bye.